welcome to another edition of Deep Focus. I'm trying to do something different, a little out of the box in the episode today. It's a great pleasure to have with me Madhurjeet Sargi, a film, television, theatre actor, and apart from all that, a very, very lovely person. Someone I really feel privileged to have got to know and to interact with. Uh, for all of you, I think you'd know her better for her recent performance in the film Chapak, where she played the lawyer Archana Bajaj, a feisty lady that her character was. I think she's equally strong and sensitive herself. One thing about Madhurjeet, which I would want to share, is that she's greatly into poetry and stories, not just from India, but from the world over. And one of the most fantastic aspect about her performances, which are not just related to films, is that she does dramatic performances uh, of stories and of plays and of any written work. Today, she has decided to do a performance of Uski Roti, Mohan Rakesh's story, which was part of what he represented, the Nai Kahani or the new story movement in Hindi literature. And more importantly, and why I thought it would be interesting to see it being performed, is that Uski Roti was also a film, was turned into a film by Money Call in 1969. And it was one of the earliest films to represent the new wave of Indian cinema. A story about a truck driver and his wife and what happens between them. I don't think I should tell more for people who haven't read the story or who haven't watched the film. But before we get Madhurji to start doing the performance for us, I would want to know from her, Madhurjeet, what is it that makes you connect with this story? Is it the setting Punjab, which is close to your root, which is your roots? I mean, what close to it is where you are from, or is it the fact that the story deals with a woman, a woman who doesn't just have to cook for her husband, but has to take the food all the way, walk all the way, and take it to the guy, and unmindful of the fact of what he's doing, how caring or not he is about her. So, what is it? Is it the rootedness, or is it the fact that you as a woman somewhere identify with the story? First of all, thank you so much for having me. I love being on your this thing because I look forward to all these performances. Uski Roti is very close to me. Firstly, because I'm a huge fan of Mohan Rakesh. I love the way he portrays his characters. I mean, the whole thing is internal, and yes, it is based in Punjab. That is also a reason why I like it. But I feel this story is beyond gender. Uh, it's basically collision of two worlds: a world of Sucha Singh, the driver, the woman's husband, and this woman. It's difficult to articulate because the story says it all. I'm not very good at articulating the thing, but let's hear the story and then you guys decide. I love the story because the conflict is internal, and every line is a painting. So I adore this story. Lovely. I think we will get to understand much better, your relationship with the story as we see you perform. I think without much ado, we are going to straight away launch into your performance. उसकी रोटी। बालों को पता था कि अभी बस के आने में बहुत देर है, फिर भी पल्ले से पसीना पोंछते हुए उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ जाती। नकोदर रोड के उस हिस्से में आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं था। वहां की जमीन भी बंजर और उबड़ खाबड़ थी। खेत वहां से 30-40 गज के फासले से शुरू होते थे और खेतों में भी उन दिनों कुछ नहीं था।
फसल काटने के बाद सिर्फ जमीन की गुड़ाई ही की गई थी, इसलिए चारों तरफ बस मटियालापन ही नजर आता था। गर्मी से पिघली हुई नकोदर रोड का हल्का सुरमई रंग ही उस मटियालेपन से जरा अलग था। जहां बालो खड़ी थी, वहां से थोड़े से फासले पर एक लकड़ी का खोखा था। उसमें पानी के दो बड़े बड़े मटकों के साथ बैठा एक अधेड़ सा व्यक्ति ऊँघ रहा था। एक तरफ 2.5-3 फुट में खोखे की छाया फैली हुई थी और एक भिकमंगा, जिसकी दाढ़ी काफी बढ़ी हुई थी, खोखे से टेक लगाए ललचाई आंखों से बालों के हाथों की तरफ देख रहा था। उसके पास ही एक कुत्ता दुबक कर बैठा था और उसकी नजर भी बालों के हाथों की तरफ लगी हुई थी। बालों ने हाथ की रोटी को मैले आंचल में लपेट रखा था। वो उसे बदनजर से बचाए रखना चाहती थी। रोटी वो अपने पति सुच्चा सिंह ड्राइवर के लिए लाई थी, मगर देर हो जाने से सुच्चा सिंह की बस निकल गई थी और वो अब इस इंतजार में खड़ी थी कि बस नकोदर से होकर लौट आए तो वो उसे रोटी दे दे। वो जानती थी उसके वक्त पर ना पहुंचने से सुच्चा सिंह को बहुत गुस्सा आया। वैसे ही उसकी बस जालंधर से चलकर 2 बजे वहां आती थी और उसे नकोदर पहुंचकर रोटी खाने में 3-3:30 बज जाते थे। वो उसकी रात की रोटी भी उसे साथ ही देती थी, जो वो आखिरी फेरे में नकोदर पहुंचकर खाता। 7 दिन में 6 दिन सुच्चा सिंह की ड्यूटी रहती थी और 6 दिनों का यही सिलसिला चलता था। बालो 1-1:15 रोटी लेकर गांव से चलती थी और धूप में आधा कोस तय करके 2 बजे से पहले सड़क के किनारे पहुंच जाती थी। अगर कभी उसे 2-4 मिनट की देर हो जाती तो सुच्चा सिंह किसी ना किसी बहाने से बस को वहां रोके रखता, मगर उसके आते ही उसे डांटने लगता कि वो सरकारी नौकर है, उसके बाप का नौकर नहीं कि उसके इंतजार में बस खड़ी रखा करे। वो चुपचाप उसकी डांट सुन लेती और उसे रोटी दे देती। मगर आज आज वो 2-4 मिनट की नहीं, 2-2.5 घंटे की देर से पहुंची थी। ये जानते हुए भी कि उस समय वहां पहुंचने का कोई मतलब नहीं था, वो अपनी बेचैनी में घर से चल दी थी। उसे जैसे लग रहा था वो जितना वक्त सड़क के किनारे इंतजार करने में बिताएगी, सुच्चा सिंह की नाराजगी उतनी ही कम हो जाएगी। ये तो निश्चित था कि सुच्चा सिंह ने दिन की रोटी नकोदर के किसी तंदूर में खा ली, मगर उसे रात की रोटी देना जरूरी था। और साथ ही वो सारी बात बताना भी जिसकी वजह से उसे आज देर हुई थी। वो पूरी घटना को मनी मन दोहरा रही थी और सोच रही थी कि सुच्चा सिंह से किस तरह से कही जाए बात कि उसे सब कुछ पता भी चल जाए और वो खामखा तैश में ना आए। वो जानती थी सुच्चा सिंह का गुस्सा बहुत खराब है और ये भी कि जंगी से उल्टा सीधा कुछ कहा जाए तो वो बगैर गंडासे के बात नहीं करता। जंगी के बारे में बहुत सी बातें सुनी जाती थी। पिछले साल वो गांव की एक मेहरी को भगा कर ले गया था और उसे न जाने कहां ले जाकर बेच आया था। नकोदर के पंडित जीवाराम के साथ उसका झगड़ा हुआ तो उसे उसने कत्ल ही करवा दिया। गांव के लोग उससे दूर दूर रहते थे मगर उससे बिगाड़ नहीं रखते। मगर उस आदमी की लाख बुराइयां सुनकर भी उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है कि 14 साल की जिंदा को अकेली देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करे। वो यूं भी जिंदा से तिगुनी उम्र का था और अभी साल भर पहले तो उसे बेटी बेटी कहकर बुलाया, मगर आज उसकी इतनी हिम्मत पड़ गई, खेत में से आती हुई जिंदा का हाथ पकड़ लिया। उसने जिंदा को नंती के यहाँ उपले मांग लाने को भेजा था। इनका घर खेतों के एक सिरे पर है और गांव के दूसरे घर दूसरे सिरे पर। वो आटा गूंद कर इंतजार कर रही थी कि जिंदा उपले लेकर आए तो वो जल्दी से रोटियां सेक ले, जिससे बस के वक्त से पहले सड़क पर पहुंच जाए। मगर जिंदा आई तो उसके हाथ खाली थे और उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रहा। जब तक जिंदा नहीं आई थी उसे उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर उसे देखते ही उसका दिल एक अज्ञात आशंका से कांप गया। क्या हुआ है जिंदो, ऐसे क्यों हो रही है? उसने ध्यान से देखते हुए पूछा। जिंदा चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई और बाहों में सर डालकर रोने लगी। है खसमा खानी, कुछ बताएगी भी, क्या बात हो गई है? जिंदा कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसके रोने की आवाज और तेज हो गई। अरे, किसी ने कुछ कहा है तुझसे? हाँ, तू मुझे उपले उपले लेने मत भेजा कर। मैं आज से घर से बाहर नहीं जाऊंगी। वो जंगी मुझसे आज कहता था। और गला रुंध जाने की वजह से वो आगे कुछ ना कह सकी। क्या कहता था जंगी तुझसे? हाँ, बता। वो खसमा खानी, अब बोलती क्यों नहीं? वो कहता था, चल जिंदा अंदर चल, शरबत पी ले, आज तू बड़ी सोहनी लग रही है। मुआ कमजात, मुए को अपनी माँ रंडी नहीं सोहनी लगती? मुए की नजर में कीड़े पड़े। निपूते तेरे घर में लड़की होती तो इससे बड़ी होती, तेरे दीदे फटे। मैंने कहा चाचा मुझे प्यास नहीं है। जिंदा कुछ कुछ संभलने लगी, फिर कहने लगा, प्यास नहीं है तो भी एक घूंट पी लेना, चाचा का शरबत पिएगी तो याद करेगी। और मेरी बाह पकड़कर खींचने लगा।
हाय हाय रे मौत मरे, तेरा कुछ ना रहे, तेरे घर में आग लगे, आने दे सुच्चा सिंह को, तेरी बोटी बोटी ना नुचवाऊं तो कहना, अरे जल मरे, तू सोया सो ही जाए। हाँ हाँ, फिर मैं बात छुड़ाने लगी तो मुझे मिठाई का लालच देने लगा। मेरे हाथ के उपले वहीं गिर गए, मैंने उन्हें वहीं वैसे ही पड़े रहने दिया और मैं बांह छुड़ा के भाग आई। उसने ध्यान से जिंदा को सर से पैर तक देखा और फिर अपने साथ सटा लिया। और तो कुछ नहीं कहा उसने। हम्म। जब मैं थोड़ी दूर निकल आई ना, तो पीछे से ही करके बोला, बेटी तू तो बुरा नहीं मान गई, अपने उपले तो उठा के ले जा, मैं तो तेरे साथ हंसी कर रहा था, तू इतना भी नहीं समझती, चल इधर आ, नहीं आती तो तेरे तेरे घर आकर तेरी बहन से शिकायत करूंगा कि जिंदा बड़ी गुस्ताख हो गई, कहा नहीं मानती। मगर मैंने ना उसे जवाब दिया, ना मुड़ के उसकी तरफ देखा, मैं सीधी घर चली आई। अच्छा किया तूने, मैं मुंह की हड्डी पसली एक करा के छोड़ूंगी। तू आने दे सुच्चा सिंह को, मैं अभी जाके उससे बात करूंगी। इसे ये नहीं पता कि जिंदा सुच्चा सिंह ड्राइवर की साली है, जरा सोच समझ के हाथ लगाओ। अच्छा सुन, जिंदा वहां तुझे किसी और ने देखा तो नहीं ना? नहीं। अ, खेतों के इस तरफ आम के पेड़ के नीचे राधू चाचा बैठा था, उसने देखकर पूछा, बेटी इस वक्त धूप में कहाँ से आ रही है? तो मैंने कहा कि बहन के पेट में दर्द था, हकीम जी से चूरन लाने गई थी। अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। मुआ जंगी तो शोधा है, उसके साथ अपना नाम जुड़ जाए तो अपनी इज्जत जाएगी। उस सरजले का क्या जाना है, लोगों को तो करने के लिए बात चाहिए। उसके बाद उपले लाकर खाना बनाने में से काफी देर हो गई। जिस वक्त उसने कटोरे में आलू की तरकारी और आम का अचार रखकर उसे रोटियों के साथ खद्दर के टुकड़े में लपेटा, उसे पता था कि 2 कप के बच चुके हैं और वो दोपहर की रोटी सुच्चा सिंह को नहीं पहुंचा सकती। इसलिए वो रोटी रखकर इधर उधर के काम करने लगी। मगर जब बिल्कुल खाली हो गई तो उससे ये ना हुआ कि बस के अंदाजे से घर से चले। मुश्किल से 3:30 4 ही बजे थे कि वो चलने के लिए तैयार हो गई। बहन तू कब तक आएगी? जिंदा ने पूछा। दिन ढलने से पहले ही आ जाऊंगी। जल्दी आना, मुझे अकेले डर लगेगा। डरने की क्या बात है? हाँ, किसकी हिम्मत है जो तेरी तरफ आंख भी उठाकर देख सके? सुच्चा सिंह को पता लगेगा तो उसे कच्चा नहीं चबा जाएगा। वैसे मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। सांझ से पहले ही घर पहुंच जाऊंगी। सुन जिंदा, तू ऐसा करना, अंदर से सांकल लगा लेना, समझी? हाँ, और कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले नाम पूछ लेना। और हाँ, अगर वो जंगी आ जाए ना और मेरे लिए पूछे कि कहाँ गई है, तो कहना सुच्चा सिंह को बुलाने गई। हम्म, समझी? पर पर नहीं, सुन तू, तू उससे कुछ नहीं कहना। हाँ, अंदर से जवाब ही मत देना, समझ गई? वो दहलीज के पास पहुंची तो जिंदा ने पीछे से कहा, बहन मेरा दिल धड़क रहा है। तू पागल हो गई है? अरे, 7 गांव है, फिर डर किस बात का? और तू आप भी तो मुटियार है, इस तरह घबराती क्यों है? मगर जिंदा को दिलासा देकर भी उसकी अपनी तसल्ली नहीं हुई। सड़क के किनारे पहुंचने के वक्त से ही वो चाह रही थी कि किसी तरह बस जल्दी से आ जाए, जिसे वो रोटी देकर झटपट जिंदा के पास वापस पहुंच जाए। अब वीरा, ये 2 बजे वाली बस को गए कितनी देर हुई है भला? उसने भिखमंगे से पूछा, जिसकी आंखें अभी भी उसके हाथ की रोटी की तरफ लगी थी। और पता नहीं पहना, कई बसें आती हैं कई जाती हैं, कौन घड़ी का साहब है यहाँ। बालो चुप हो रही। एक बस अभी थोड़ी ही देर पहले नकोदर की तरफ गई थी। उसे लग रहा था धूल के फैलाव के दोनों तरफ 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। बसें एक दुनिया से आती हैं और दूसरी दुनिया की तरफ चली जाती हैं। कैसी होंगी वो दुनियाएं, जहां बड़े बड़े बाजार हैं, दुकानें हैं, और जहां एक ड्राइवर की आमदनी का 3/4 हिस्सा हर महीने खर्च हो जाता है। देवी अक्सर कहा करता था कि सुच्चा सिंह ने नकोदर में एक रखेल रख रखी है। उसका कितना मन होता था कि एक बार उस औरत को देखे। उसने एक बार सुच्चा सिंह से कहा भी था कि वो उसे नकोदर दिखा दे, पर सुच्चा सिंह ने डांट के जवाब दिया था। क्यों, तेरे बड़े पर निकल रहे हैं? घर में चैन नहीं पड़ता? सुच्चा सिंह वो मर्द नहीं है कि औरत की बाह को बाह में बाह डकर डाल के सड़कों पे घुमाता फिरे।
नहीं, घूमने का ऐसा शौक है ना, दूसरा खत्म कर ले जा, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है तुझे, जा। उस दिन के बाद वो ये बात जबान पर भी नहीं लाई थी। सुच्चा सिंह कैसा भी हो, उसके लिए सब कुछ वही था। उसे गालियां दे लेता था, मारपीट लेता था, फिर भी उससे इतना प्यार तो करता था कि हर महीने तनख्वाह मिलने पर उसे 20 रुपए दे जाता था। लाख बुरी कहकर भी उसे अपनी घरवाली तो समझता था। और जबान का कड़वा भले ही हो सुच्चा सिंह, पर दिल का बुरा हरगिज नहीं था। वो उसके जिंदा को घर में रख लेने पर अक्सर कुड़ा करता था, मगर पिछले महीने खुद ही जिंदा के लिए कांच की चूड़ियां और 2.5 गज मलमल ला कर दे गया था। एक बस धूल उड़ाती हुई आकाश के उस छोर से इस तरफ को आ रही थी। बालों ने दूर से ही देखकर पहचान लिया कि वो सुच्चा सिंह की बस नहीं है। फिर भी बस जब तक पास नहीं आ गई, वो उत्सुक आंखों से उसकी तरफ देखती रही। बस प्याऊ के सामने आकर रुकी। एक आदमी प्याज और शलगम का गट्ठर लिए बस से उतरा। फिर कंडक्टर ने जोर से दरवाजा बंद किया और बस आगे चल दी। जो आदमी बस से उतरा था, उसने प्याऊ के पास जाकर प्याऊ वाले के जगाया, चुल्लू से 2 लोटे पानी पीकर मूछें साफ करता हुआ अपने गट्ठर के पास लौट आया। वीरा, ये नकोदर से अगली बस कितनी देर में आएगी भला? बालू ने 2 कदम आगे जाकर उस आदमी से पूछ लिया। और घंटे घंटे बाद बसें चलती है माई, तुझे कहाँ जाना है? नहीं, जाना नहीं है वीरा, वो बस का इंतजार करना है। वो सुच्चा सिंह ड्राइवर है ना, वो मेरा कार वाला है, उसे रोटी देनी है। हो, सुच्चा सिंह। और उस आदमी के होठों पर एक खास तरह की मुस्कुराहट आ गई। तू तू उसे जानता है वीरा? उसे नकोदर में कौन नहीं जानता। बालों को उसके कहने का ढंग अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह चुप हो रही। सुच्चा सिंह के बारे में जो बातें वो खुद जानती थी, उन्हें उसे दूसरों के मुंह से सुनना पसंद नहीं था। उसे समझ में नहीं आता था कि दूसरों को क्या हक है कि वो उसके आदमी के बारे में इस तरह से बात करे। और सुच्चा सिंह शायद अगली बस लेके आएगा, वो आदमी बोला। हाँ, इसके बाद अब उसी की बस आएगी। नहीं, वैसे बड़ा जालिम है जो तुझसे इस तरह इंतजार करा रहा है। चल वीरा, अपना रास्ता ले। वो क्यों इंतजार कराएगा? मुझे रोटी लाने में देर हो गई थी, जिससे बस निकल गई। वो बेचारा तो सुबह से भूखा बैठा होगा। भूखा? कौन, सुच्चा सा है? और वो व्यक्ति दांत निकाल कर हंस दिया। बालों ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। या सच्चे साईं, कहकर उस आदमी ने अपना गट्ठर सर पर उठा लिया और खेतों की पगडंडी पर चल दिया। बालों की दाईं टांग सो गई थी, उसने भार दूसरी टांग पर बदलते हुए एक लंबी सांस ली और दूर तक के वीराने को देखने लगी। न जाने कितनी देर के बाद आकाश के उसी कोने से उसे दूसरी बस अपनी तरफ आती हुई नजर आई। तब तक खड़े खड़े उसके पैरों की एड़ियां भी दुखने लगी थी। बस को देखकर वो पोटली का कपड़ा ठीक करने लगी। उसे अफसोस हो रहा था कि वो रोटियां कुछ देर और से क्यों नहीं बना के लाई, जिससे वो रात तक कुछ और ताजा रहती। हाय, सुच्चा सिंह को कड़ाह प्रसाद का कितना शौक है। उसे क्यों ध्यान नहीं आया कि आज थोड़ा कड़ाह प्रसाद ही बना लाए। खैर, कल कल गुरपुरब है ना, कल जरूर कड़ाह प्रसाद बना के लाएगी। पीछे गर्द की लंबी लकीर छोड़ती हुई बस पास आती जा रही थी। बालों ने 20 गज दूर से ही सुच्चा सिंह का चेहरा देखकर समझ लिया कि वो उससे बहुत नाराज है। उसे देखकर सुच्चा सिंह की भवें तन गई थी और निचले होंठ का कोना दांतों में चला गया था। बालों ने धड़कते हुए दिल से रोटी वाला हाथ ऊपर उठा दिया, मगर बस उसके पास न रुककर प्याऊ से जरा आगे जाकर रुकी। एक दो लोग वहां बस से उतरने वाले थे। कंडक्टर बस की छत पर जाकर एक आदमी की साइकिल नीचे उतारने लगा। बालो तेजी से चलकर ड्राइवर की सीट के बराबर पहुंच गई। सुच्चा सिंह, ले, रोटी ले ले। उसने हाथ ऊंचा उठाकर रोटी अंदर पहुंचाने की चेष्टा करते हुए कहा। और जा। सुच्चा सिंह ने उसका हाथ छटक कर पीछे हटा दिया। सुच्चा सिंह, 1 मिनट नीचे उतर के मेरी बात सुन ले। आज एक खास वजह हो गई, नहीं तो मैं बक नहीं, हट जा। कहकर सुच्चा सिंह ने कंडक्टर से पूछा कि पीछे का सारा सामान उतर गया या नहीं। बस एक पेटी बाकी है जी, उतार रहा हूँ, कंडक्टर ने छत से आवाज दी। सुच्चा सिंह, मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, तू 1 मिनट नीचे उतर के मेरी बात तो सुन ले। उतर गई पेटी? सुच्चा सिंह ने कंडक्टर से फिर पूछा। हाँ जी, चलो चलो चलो, पीछे से कंडक्टर की आवाज आई। सुच्चा सिंह,
सुच्चा से तू मुझ पे नाराज हो ले, पर रोटी तो रख ले। तू मंगलवार को घर आएगा ना, तो मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। बालों ने हाथ और ऊंचा उठा दिया। मंगलवार को तो रहेगा तेरा। और एक मोटी सी गाली देकर सुच्चा सिंह ने बस स्टार्ट कर दी। दिन ढलने के साथ साथ आकाश का रंग बदलने लगा था। बीच बीच में कोई एक आध पक्षी उड़ता हुआ आकाश को पार कर जाता। खेतों में कहीं कहीं रंगीन पगड़ियां दिखाई देने लगी थी। बालों ने प्याऊ से पानी पिया और आंखों पर छींटे मारकर आंचल से मुंह पोंछ लिया। फिर प्याऊ से कुछ फासले पर जाकर खड़ी हो गई। वो जानती थी कि अब सुच्चा सिंह की बस जालंधर से 8-9 बजे तक वापस आई। क्या तब तक उसे यहीं इंतजार करना चाहिए? अरे सुच्चा सिंह को इतना तो करना चाहिए था कि एक बार उतर कर उसकी बात सुन लेता। उधर जिंदा घर में अकेली डर रही होगी। मुआ जंगी पीछे से किसी बहाने से आ गया तो? सुच्चा सिंह रोटी ले लेता तो वो आधे घंटे में घर पहुंच जाती। अब रोटी तो वो बाहर कहीं ना कहीं से खा ही लेगा, मगर मगर उसके गुस्से का क्या होगा? सुच्चा सिंह का गुस्सा बेजा भी तो नहीं है। उसका मेहनती शरीर है बेचारे का, उसे कस के भूख लगती है। वो थोड़ी मिन्नत और करती तो वो जरूर मान जाता। पर पर अब प्याऊ वाला प्याऊ बंद कर रहा था। भिकमंगा भी ना जाने कब का उठकर चला गया था। हाँ, कुत्ता अभी भी वहां आसपास घूम रहा था। धूप ढल रही थी और आकाश में उड़ते हुए चिड़ियों के झुंड सुनहरे लग रहे थे। बालों को सड़क के पार तक फैली हुई अपनी छाया बहुत अजीब लग रही थी। पास के किसी खेत में कोई गभरू जवान खुले गले से एक माहिया गा रहा था। हो बोलण दी था कोई ना है, बोलण दी था कोई ना, जेड़ा सानू लावे दिता, उस रोग दा ना कोई ना है, उस रोग दा ना कोई ना। माहिया की लय बालों की रग रग में बसी हुई थी। बचपन में गर्मियों की शाम को वो और बच्चों के साथ मिलकर रहंट की पानी की धार के नीचे नाच नाच कर नहाया करती थी। तब भी माहिया की लय इसी तरह हवा में समाई रहती थी। सांझ के छुटपुटे के साथ उस लय का एक खास ही संबंध था। फिर ज्यों ज्यों वो बड़ी होती गई, जिंदगी के साथ इस लय का संबंध और भी गहरा होता गया। उसके गांव का एक युवक लाली था जो बड़ी लोच के साथ माहिया गाया करता था। उसने कितनी बार गांव के बाहर पीपल के नीचे कान पर उसे हाथ रखकर गाते हुए सुना था। पुष्पा और पारो के साथ वो देर देर तक पीपल के पास खड़ी रहती थी। और फिर एक दिन आया जब उसकी माँ कहने लगी कि अब वो बड़ी हो गई है, उसे इस तरह देर तक पीपल के पेड़ के पास नहीं खड़ी रहना चाहिए। उन्हीं दिनों में उसकी सगाई की भी चर्चा होने लगी थी। जिस दिन सुच्चा सिंह के साथ उसकी सगाई हुई थी, उस दिन पारो आधी रात तक ढोलक पर गीत गाती रही थी। अरे गाते गाते पारो का गला रह गया था, फिर भी ढोलक छोड़ने के बाद उसे बाहों में लिए हुए गाती रही थी। नी बीबी चन्नन दे ओले ओले क्यों खड़ी, मैं ता खड़ी सा बाबल जी दे बार, बाबल वार लोड़िए नीतिए के हो जे आवर लोड़िए, जो तारिया विचो चन्न चन्ना विचो नंद, कन्हैया वर लोड़ी, कन्हैया वर लोड़ी। वो नहीं जानती थी कि उसका वर कौन है, कैसा है। फिर भी उसका मन कहता था कि उसके वर की सूरत शक्ल ठीक वैसी होगी जैसी इस गीत की कड़ियां सुनकर सामने आती हैं। सुहाग रात को जब सुच्चा सिंह ने उसके चेहरे से घूंघट हटाया था, तो उसे देखकर लगा था कि वो सचमुच बिल्कुल वैसा ही कान कन्हैया वर पा गई है। सुच्चा सिंह ने उसकी ठोड़ी ऊंची की थी तो न जाने कितनी लहरें उसके सर से उठकर उसके पैरों के नाखूनों में जा समाई थी। उसे लगा कि जिंदगी जिंदगी न जाने ऐसी कितनी सिरहनों के साथ भरी होगी जिन्हें वो रोज रोज महसूस करेगी और अपनी याद में संजो कर रखती जाएगी।
तू हीरे की कणी है, हीरे की कणी, सुच्चा सिंह ने कहा और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उसका मन हुआ था कि कहे, ये हीरे की कणी तेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, मगर वो शर्माकर चुप हो गई थी। ओ माई, अंधेरा हो रहा है, घर जा, यहाँ खड़ी क्या कर रही है, हैं? प्याऊ वाले ने चलते हुए पास आकर रुककर कहा, वीरा, ये ये बस 8-9 बजे तक जालंधर से लौट आएगी ना? क्या पता कब तक आए, हैं? तू उतनी देर यहीं खड़ी रहेगी? वीरा, वो उसकी रोटी जो देनी है। अरे उसे रोटी लेनी होती तो लेना लेता पैणा, है? उसका तो दिमाग ही आसमान पे चढ़ा रहता है। चल वीरा, कोई ना, मर्द कभी नाराज हो ही जाता है, इसमें ऐसी क्या बात है। अच्छा भाई, खड़ी रह, तेरी मर्जी, बस तो 9 से पहले क्या आएगी। चलो, जब भी आए। प्याऊ वाले से बात करके वो निश्चय खुद ब खुद हो गया जो वो अब तक नहीं कर पाई थी, कि बस के जालंधर से लौटने तक उसे वहीं रुके रहना है। जिंदा थोड़ा डरेगी, इतना ही ना। नहीं, जंगी की अब दोबारा उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ सकती। आखिर गांव की पंचायत भी तो कोई चीज है। दूसरे की बहन बेटी पर बुरी नजर रखना क्या मामूली बात है? और सुच्चा सिंह को पता चल जाएगा तो वो उसे केशों से पकड़ के सारे गांव में नहीं घसीट देगा। मगर सुच्चा सिंह को ये बात ना बताना ही शायद बेहतर हो। क्या पता इतनी सी बात में दोनों में सरफुटअव्वल हो जाए। सुच्चा सिंह पहले ही घर के झंझटों से घबराता है, उसे उसे और झंझट में डालना ठीक नहीं। अच्छा ही हुआ जो उस वक्त सुच्चा सिंह ने उसकी बात नहीं सुनी। वो तो अभी कह रहा था कि वो मंगलवार को घर नहीं आएगा। अगर वो सचमुच ना आया तो, और अगर उसने गुस्से होकर घर आना छोड़ दिया तो? नहीं नहीं, वो उसे कोई परेशान करने वाली बात नहीं बताएगी। सुच्चा सिंह खुश रहे, घर की परेशानियां वो खुद संभाल सकती है। वो जरा सी सिहर गई। गांव का लोटू सिंह अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया था। उसके पीछे वो टुकड़े टुकड़े को तरस गई थी, और अंत में उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पानी से फूलकर उसकी देह कितनी भयानक हो गई थी। उसे थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वो जाकर प्याऊ के तख्ते पर बैठ गई। अंधेरा होने के साथ साथ खेतों की हलचल फिर शांत होती जा रही थी। माहिया के गीत का स्थान अब झिंगुरों के संगीत ने ले लिया था। एक बस जालंधर की तरफ से और एक नकोदर की तरफ से आकर निकल गई थी। सुच्चा सिंह जालंधर से आखिरी बस लेकर आता था। उसने पिछली बस के ड्राइवर से पता कर लिया था कि अब जालंधर से एक ही बस आनी रहती है। अब जिस बस की बत्तियां उसे दिखाई देंगी वो सुच्चा सिंह की ही बस होगी। थकान के मारे उसकी आंखें मुदी जा रही थी। वो बार बार कोशिश से आंखें खोलकर उन्हें दूर तक अंधेरे और उन काली छायाओं पर केंद्रित करती, जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जरा सी भी आवाज होती तो उसे लगता कि बस आ रही है और वो सतर्क हो जाती। मगर बत्तियों की रोशनी ना दिखाई देने से एक ठंडी सांस भर के फिर से निढाल हो रही थी। एक दो बार मुदी हुई आंखों से उसे जैसे लगा कि बस की बत्तियां उसकी तरफ आ रही हैं, और वो चौंक गई। मगर बस नहीं आ रही थी। और फिर उसे अचानक लगने लगा जैसे वो घर में है और कोई जोर जोर से घर के किवाड़ खटखटा रहा है। जिंदा अंदर सहम कर बैठी है। उसका चेहरा हल्दी की तरफ पीला हो रहा है। रहंट के बैल लगातार घूम रहे हैं। उनकी घंटियों की ताल के साथ साथ पीपल के नीचे बैठा एक युवक कान पर हाथ रख के माहिया गा रहा है। जोर की धूल उड़ रही है और धरती और आकाश की हर चीज को ढके ले रही है। वो अपनी रोटी वाली पोटली को संभालने की कोशिश कर रही है, वो मगर वो बार बार उसके हाथ से निकलती जा रही है। प्याऊ पर सूखे मटके पड़े हैं जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं है। वो बार बार लोटा मटके में डालती है पर उसे खाली पाकर निराश हो जाती है। उसके पैरों में बेवाइयां फूट रही हैं। वो हाथ की उंगली से उन पर तेल लगा रही है, मगर लगाते लगाते ही तेल सूखता जाता है। जिंदा अपने जिंदा अपने खुले बाल घुटनों पर डाले रो रही है और कह रही है, तू मुझे अकेली छोड़ के क्यों गई थी? क्यों गई थी मुझे छोड़कर? हाय मेरा परांदा किसने ले लिया? हाय मेरा परांदा किसने? सहसा कंधे पर हाथ छूने से वो चौंक गई। सुच्चा सा, उसने जल्दी से आंखों को मल लिया। और तू अब तक कर नहीं गई? सुच्चा सिंह तख्ते पर उसके पास ही बैठ गया। बस ठीक प्याऊ के सामने खड़ी थी। उस वक्त उसमें एक भी सवारी नहीं थी।
कंडक्टर पीछे की सीट पर ऊँघ रहा था। मैंने सोचा रोटी दे के जाऊंगी। बैठे बैठे झपकी आ गई। तुझे आई ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं, अभी बस खड़ी की है, और मैंने तुझे दूर से ही देख लिया था। तू इतनी पागल है, तब से लेके अब तक तू रोटी देने के लिए यहाँ बैठी है, हैं? क्या करती तू जो कह के गया था कि मैं घर नहीं आऊंगा? और उसने पलकें झपक कर अपने उमड़ते हुए आंसुओं को सुखा देने की चेष्टा की। चल यार, रोटी दे और कर जा, जिंदा अकेली डर रही होगी। सुच्चा सिंह ने उसकी बात थपथपा दी और उठ खड़ा हुआ। रोटी वाला कटोरा उससे लेकर सुच्चा सिंह उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए उसे बस के पास तक ले आया। फिर वो उचक कर अपनी सीट पर बैठ गया। बस स्टार्ट करने लगा तो वो जैसे डरते डरते बोली, हाँ, अ, सुच्चा सिंह, तू तुम मंगल को घर आएगा ना? हाँ आऊंगा, तुझे शहर से कुछ मंगवाना तो बता दे। नहीं, मुझे मंगवाना कुछ नहीं है। बस घर घर आने लगी तो वो 2 कदम पीछे हट गई। सुच्चा सिंह ने अपनी दाढ़ी मूछ पर हाथ फेरा, एक डकार लिया और फिर उसकी तरफ देखकर पूछ लिया, हाँ तो उस वक्त क्या बात बताना चाहती थी? आ, नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मंगल कर तू घर आएगा ही ना? अच्छा अच्छा, अब जल्दी जा, देर ना कर, 1 मील बाट है। सुच्चा सिंह, कल कल गुरुपुरब है ना, कल तेरे लिए कड़ा प्रसाद बना के लाऊंगी मैं। अच्छा अच्छा। बस चल दी। बालों पहियों की धूल में घिर गई। धूल साफ होने पर उसने पल्ले से आंखें पोंछ ली और तब तक बस के पीछे की लाल बत्ती को देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हुई। Great world created around Balo for us. Uh, I think all of us would be prompted to perhaps go and read it now, then, the story once again, because of, the way that you've brought it alive. I think that is the most important thing about these dramatic performances that you do, that, one can go back to those texts and see them in various forms again and again and again. It's a And beautiful story. It's a beautiful story. It's one of my favorites. yeah. And I have not read it, and I think today your reading is the one which is prompting me to perhaps pick it up and read it, read Please the do. words, because I have seen the film, and then your performance brings it alive in another way altogether. And I think that is the one great thing about एक शब्द को वर्ड टू स्क्रीन, वर्ड टू थिएटर, वर्ड टू परफॉर्मेंस आप किस तरह से लेके जा सकते हैं. देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज. थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड डूइंग दिस फॉर अस.